یہ بات ہے میرے نبی کے دور کی۔ اے محمد کے ماننے والوں، ذرا سوچ کر جواب دو، کیا دیا ہے تمہارے اللہ نے تمہیں بھوک اور غریبی کے علاوہ؟ کاش تم سمجھ پاتے عقبہ، ہمارے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، برابری کا درجہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس کی عبادت اس کے لیے جہنم بن گئی۔ کیا تم اسی طرح جاؤ گے طواف کرنے؟ ہاں بالکل ایسے ہی جاؤں گا۔ دماغ ٹھکانے ہے تمہارا؟ یہ کپڑے پہن کر جاؤ گے کا؟ ان کپڑوں میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ ارے اتارو یہ گناہ والے کپڑے، اللہ کے گھر کا طواف ویسے کرو جیسے تم دنیا میں آئے تھے۔ تمہارا مطلب بنا کپڑوں کے؟ ہاں بالکل۔ یہ بات ہے اس احکام کی جس میں اللہ نے دین اور دنیا کو ایک ایسی گانٹھ میں باندھ دیا جس کو قیامت تک کھولا نہیں جا سکتا۔ بیٹا شاباش، جلدی سے وہ خراب والی کھجوریں ان اچھی کھجوروں کے نیچے لگا دیں۔ یہ تو غلط ہے نا بابا؟ ارے بیٹا کاروبار میں یہ سب چلتا ہے، چل جلدی لگا دے، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ یہ بات ہے سورہ ماعون کی۔ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ بچپن میں ہم میں سے کئی لوگ قرآن مجید کی آخری 10 صورتوں کو یاد کرنے کے باوجود بھی سورہ الماعون کو بھول جاتے ہیں۔ سعدیہ آپ سنائیں سورہ ماعون۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد۔ سورہ کافرون نہیں، سورہ ماعون۔ اور آج ہمارے اس معاشرے میں نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جو اکثر یہ سوال پوچھتے نظر آتے ہیں۔ اوکے، ان اسلام دین اور دنیا کو لے کے چلو۔ What is more important, دین اور دنیا؟ پر افسوس ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ بات نہیں جانتے کہ دین اور دنیا کو بیلنس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کل ایک صحابی بتا رہے تھے کہ سورہ ماعون میں اللہ اور اس کے نبی نے بتا دیا کہ دین میں ہی دنیا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں؟ اور نہیں تو کیا۔ کیا ہے سورہ الماعون کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ اور کس طرح یہ سورت ہماری دنیا کو ہمارے دین سے جوڑتی ہے؟ اور ہاں ایک اور امپورٹنٹ بات، یہ سورہ ہمیں ایسا کون سا لٹمس ٹیسٹ سکھاتی ہے جسے ہم بڑی آسانی سے یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ کہیں نماز اور تہجد کا پابند ہونے کے باوجود بھی ہم جہنم کا ایندھن تو نہیں۔ سلام حافظ جی، 3 مہینے ہو گئے، اگر آپ پیمنٹ کر دیتے تو مہربانی ہوتی۔ اوے سن، مل جائے گی تیری پیمنٹ، ابھی کام ٹھنڈا پڑا ہے، اگلی بار فون کرے تو گالی بک کر فون کاٹ دینا، پریشان کر رکھا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ، 1400 سال پرانی اس سورت کا کیا ریلیونس ہے ہماری آج کی زندگی میں؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ الماعون مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ کعبہ کے ذمہ دار تھے۔ وہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، حاجیوں کی حج کا انتظام کرتے، یمن اور شام کے سفر کو مینج کیا کرتے تھے، اور ان دنوں میں دنیا بھر میں ہونے والے تجارتی سفروں سے، مکہ میں کیے جانے والے حجوں سے ہونے والی کمائی سے مکہ کے غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اے غلاموں، یاد رہے حاجیوں کی خاطرداری میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ پانی، قالین اور عطر سب وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ اور ہاں، کچھ لکڑی والوں کو بول کے کعبہ کے دروازوں کی لکڑی ٹھیک کرواؤ۔ مگر یہ سب ایک جھوٹ تھا، ایک دکھاوا، ایک فریب تھا۔ اصل میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اللہ کے گھر کعبہ کو سیاست اور کمائی کی دکان بنا دیا تھا۔ بنو تمیم کے لوگ کپڑے اتار کر طواف کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ جیسے حج کرنا چاہیں کرنے دو۔ انہیں ناراض کرنا مطلب کاروبار کا نقصان۔ اس کے علاوہ کعبہ کے باہر کچھ کھومچے بھی لگوائے ہیں، جا کر ان سے کرایہ وصول کر لو۔ جی بہتر۔ چلو چلو۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ یہ غریبوں کو کھانا تو کھلاتے لیکن دکھاوے کے لیے، مسکینوں کی مدد کرتے مگر دکھاوے کے لیے۔ یہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں مگر وہ بھی دکھاوے کے لیے۔ دعوت بہت لاجواب۔ جلدی جلدی بولو، اب کیا مانگنے آئے ہو؟ قاسم کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے،
अगर आप थोड़ा अनाज दे देते तो मेहरबानी होती। तुम लोग तो रोज भूख का रोना लेकर आ जाते हो। हर जुमेरात मैं पूरे मक्का के लिए 2 बढ़िया ऊंट ज़िबा करवाता हूँ। हाँ, सही कहा। बिल्कुल। फिर भी तुम लोगों की भूख नहीं मरती। देख लीजिए, अगर कुछ हो सके चलो भागो यहाँ से, बाद में आना। कबीले के सरदारों के इस रवैये ने मक्का के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया था जिसमें गरीब, बेबस और लाचारों के लिए कोई जगह न थी। वहाँ सिर्फ ताकत का बोलबाला था। ये पैसे और ताकत वाले लोग जिस तरह चाहते उस तरह गरीब और मिस्कीनों के साथ पेश आते, इन गुलामों को बुरी तरह ट्रीट करते। और सबसे बड़ी बात, ये ऊंच नीच इनके लिए कुछ न था, बल्कि उनके लिए एक आम सी बात थी, एक नॉर्मल कल्चर था। मैंने सोचा तुम सबको बता दूं, कल से 5 साल के बच्चे भी हमारी गुलामी करेंगे। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। और हाँ, कोई बीमारी बुखार का बहाना नहीं, समझे? जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस्लाम की दावत दी तो इन लोगों को ये बात सबसे ज्यादा चुभती थी कि आप गरीबों की हिमायत करते हैं, इन्हें बराबर का हक देते हैं। इन लोगों को लगता था कि अगर ये काले हबशी लोग हमारी गुलामी नहीं करेंगे तो हमारे काम कौन करेगा, हम इनके साथ बैठकर खाना खाएंगे। आप बुजुर्ग हैं मक्का के, जरा सोच कर देखिए कैसा लगेगा आपको अपने हबशी गुलामों के साथ बैठकर खाना खाना। वक्त रहते कुछ कीजिए, वरना ये परेशानी और बढ़ जाएगी। तुम ठीक कहते हो उक़बा। हम अबू लहब से बात करते हैं ताकि वो अपने भतीजे को समझाए। बेहतरीन ख्याल है। और एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो किया जिसने अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार को गिराकर इंसानियत का परचम सबसे ऊंचा कर दिया। मक्का की वो हवा उसमें कुछ ज्यादा ही खामोश थी। चलता सूरज आसमान से काबा को निहार रहा था और उन्हीं गलियों में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा पुराने कपड़े पहनने इधर उधर भटक रहा था। ये मक्का का सबसे कमजोर इंसान था। गुज़रते साल एक लंबी बीमारी में उसके बाप की मौत हो गई थी। कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी गुजर गई। अब उसके पास ना ही बाप की शफकत थी, ना ही माँ की मोहब्बत थी, ना किसी कबीले का सहारा था, ना किसी बड़ी की सिफारिश थी। वो बस अकेला था, बिल्कुल अकेला। लेकिन फिर भी उस यतीम बच्चे के दिल में, नन्हे से दिल में, किसी कोने में एक उम्मीद बची थी कि शायद आज अबू जहल उसका माल उड़ा दे। वो माल जिसको उसके वालिद ने चंद साल पहले अमानत के तौर पर अबू जहल के पास रखा था। वो अबू जहल की तरफ दौड़ा। उसके पैर धूल से भरे हुए थे, उसकी सांस उखड़ रही थी, उसका गला पानी की प्यास से सूख गया था। लेकिन वो बिना रुके बस भागता रहा और अबू जहल के पास पहुंचा अपना हक लेने के लिए। अबू जहल के बागों में वक्त गुजारने का मजा ही अलग है। बदबख्त, बिल्कुल मुफ्त खोर कहीं के हर हफ्ते चले आते हैं मेरा माल खाने। ओ अबू जहल, यारों के यार, हिसाब बाद में कर लेना। आओ हमारे साथ आके बैठो। बस अभी आया। अच्छा अच्छा, जल्दी आओ। अरे वो देखो, रशीद का लड़का। हुजूर, वो देखिए सामने। ये बदबख्त फिर से चला आया। हद है, अब देखना तमाशा। इससे पहले कि वो लड़का कुछ कहता, अबू जहल उसकी तरफ पलटा और जहर भरी आवाज में उससे कहा, तो फिर आ गया भीख मांगने? चल दफा हो यहाँ से। मैं भीख नहीं मांगता, बल्कि अपने बाबा की वो अमानत मांगता हूँ जो आपके पास है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अब मुझसे मुंहजोरी भी करने लगा? चल। अरे अरे, दफा हो यहाँ से, बेचारा बच्चा। अबू जहल का ये रवैया देखकर उस बच्चे का दिल टूट गया, मानो ऐसे जैसे कांच जमीन पर गिरकर टूट जाता है। अगर दोबारा यहाँ नजर आया तो तेरी खाल खिंचवा दूंगा। बड़ा जालिम है अबू जहल। वो कुछ बोलना चाहा मगर बोल न पाया। मगर तभी इन जालिमों के जहन में एक शरारत सोची। रशीद के बेटे, इधर आ। अरे आ ना, चल जल्दी आ।
बहुत गलत किया अबू जहल ने बेचारे के साथ। कोई बात नहीं, देख तेरा माल सिर्फ मोहम्मद ही दिलवा सकते हैं। जा उनके पास जा। इन जालिमों का इरादा था कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल को लड़ाना चाहते थे और खुद मजा उठाना चाहते थे, मगर इन्हें क्या खबर थी कि जो होने वाला है वो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अब होगी खूब तफरीह। अरे दौड़ के जा बेटा, शाबाश दौड़ के जा। बच्चा दौड़ता हुआ नबी के पास पहुंच गया। उसने मेरे नबी को सब कुछ बता दिया। ये सब बातें सुनकर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और इस बच्चे का हाथ थामा, वो हाथ जिसको आज तक कभी किसी ने नहीं पकड़ा था। वो देखो शादमान, आप हैं मोहम्मद। आपके पैगाम के चर्चे मुल्क शाम तक हैं। अरे वो देख आप जा रहे हैं, जा जल्दी से खजूर उन्हें दे आ और कहना तोहफा है। लो आ गए मोहम्मद, अब होगा तमाशा, देखना मजा आएगा। अल्लाह के नबी को देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके चेहरे की हंसी ऐसे उड़ गई जैसे कदमों की आहट से परिंदे उड़ जाया करते। अबू जहल कुछ बोल ना सका, उसकी आवाज उसके गले के अंदर ही दफन हो गई। अल्लाह के नबी ने सिर्फ उससे इतना कहा कि ए अबू जहल, इस यतीम का माल इसे वापस कर दो। वो बिना कुछ सोचे कुछ कहे अबू जहल ने फौरन इस यतीम का माल इसके हाथ में रख दिया। वो बच्चा मुस्कुरा दिया। बाकी कबीलों के जालिम सरदार दूर खड़े माजरा देख रहे थे। अल्लाह के नबी और बच्चे के जाने के बाद ये लोग अबू जहल के पास आए। उन्होंने उससे कहा कि क्या ये मामला है? समझ में नहीं आता। उन्होंने अबू जहल से कहा, अबू जहल ये क्या मामला है? क्या तुम ईमान ले आए हो? तो आगे से अबू जहल ने जवाब दिया, काबा के बुतों की कसम, मोहम्मद को देखकर ऐसा लगा कि कोई अनजानी ताकत मुझे मिट्टी में मिला देगी। और इसी तरह वो बच्चा खामोशी से मेरे नबी के साथ चल दिया। तो ये था सूरह अल-माऊन के पीछे नाज़िल होने का वाक़या। तो चलती हैं अब इसको लाइन बाय लाइन, लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझने की कोशिश करते हैं। अबू अरबा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी, क्यों नहीं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'्उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ तो चलिए अब इस पूरी आयत को फटाफट समझ लेते हैं कि इस पूरी आयत में बात क्या हुई है। तो पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोटिस करवाने वाले अंदाज में अपने नबी से ये कह रहे हैं कि ऐ मेरे प्यारे नबी, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नोटिस नहीं किया उसको जो आखिरत के दिन को झुठलाता है, और यही तो वो है जो यतीम को दुख देता है, उसको धत्कारता है और जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है। और यही वो इंसान है जो दूसरों को भी नहीं कहता कि तुम सामने वाले का हक दे दो। तो बर्बादी है, अफसोस है और जहन्नम है ऐसी इबादत करने वाले के लिए जो अपनी इबादत से गाफिल है। और ये उल्टी सीधी इबादत भी शो ऑफ के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, और इनके दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि छोटी चीजें भी शेयर नहीं करते। जब इन्हें दौलत मिल जाती है तो अब उसको रोक कर रखते हैं, किसी और तक उसका कोई फैज ना पहुंच जाए। अब इस सूरत का रेलेवेंस समझते हैं कि आज हमारी जिंदगी में इसका क्या रेलेवेंस है, क्या काम है। इस सूरत में जो गौर करने वाली बात वो ये है
इस सूरत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईमान और इखलाक दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। यानी अब आपकी दीन और दुनिया अलग नहीं है, बल्कि वो एक ही है। क्योंकि सूरत का पहला हाफ हमें ये बताता है कि दिल के अंदर ईमान ना होने की पहली निशानी ये है कि आपका रवैया लोगों के साथ खराब होगा। उसकी मिसाल आजकल हम अपनी सोसाइटी में बहुत आराम से देख सकते हैं। लोग काम करवाने के बाद पैसे नहीं देते, नौकरियों में तनख्वाहों को लेट कर दिया करते हैं। मेहनत करने वाले का पसीना सूख के नमक हो गया, लेकिन आपकी जेब से हक नहीं निकला। बड़ा भाई, बड़ी बहन या किसी के घर में इंतकाल हो गया, आप उसके बच्चे को अपने घर ले आए। आपने तो बड़ा एहसान किया है उस यतीम को अपने घर लाकर, लेकिन औलाद की तरह नहीं रखा उससे बेइंतहा काम करवाए। सारे काम जो आपके छोटे बेटे को करने चाहिए थे, आपके फैमिली मेंबर को करने चाहिए थे, वो सारे काम उससे करवाए जाते हैं। तुमसे तो बहुत काम लेती है। अरे जाओ बाजी, घर में रहते हैं तो हाथ तो बटाना ही पड़ता है, थोड़ा अपने लाडले से भी करवा लिया कर। और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके लिए इतना ये सब कुछ नॉर्मल हो चुका है ये कि आपको लगता ही नहीं कि आप कोई खराबी या कोई बुराई कर रहे हैं या किसी जगह किसी का हक मार रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी एटीट्यूड रखने वाली की इबादत पर ख्याल कहा है, यानी ऐसे लोगों की इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। तो इस सूरत का सेकंड हाफ हमें ये बताता है कि वो नमाजी नमाजों से बहुत ज्यादा गाफिल है। आपको लग तो रहा होगा कि आपने नमाज पढ़ ली, टकरे मार आप आ गए, लेकिन असल में आपने इबादत नहीं की। आपने सिर्फ एक दिखावा किया है, एक बोझ उठाया है, जो कि आप पे बोझ था अब आपने उतार दिया है ना। वक्त निकल रहा है, नमाज पढ़ लो। अभी 10 मिनट है, पढ़ लूंगी, तुम अपनी पढ़ लो। ये सूरत हमें एक फार्मूला बताती है, ईमान प्लस अच्छा इखलाक इज इक्वल टू वंडरफुल इबादत। Islam is that simple. Wallahi, it is that simple. Everything else is just the details. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपने नए दोस्तों में इसको लाजमी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।